الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، اللہ جل جلالہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسری آیت کریمہ میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق اور باطل کو واضح کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ومن کان مریضا او علی سفر، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو جو بیمار ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں سے اس قضا کرے، اس کی گنتی کو پورا کرے۔ جب تندرست ہو، بیمار ہے، ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے جان جاتی ہے یا مرض کا بڑھ جانے کے قوی امکان ہے، موت آ جانے کا خوف ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ افطار کرنا جائز ہے۔ باقی جب وہ صحت مند ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ رب کی رحمت ہے، رب کا کرم ہے، فضل ہے، جو بندوں کے جو ہے تقاضوں کو بھی سامنے رکھتا ہے کہ میری مخلوق کمزور ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں باتوں پر عمل نہ کر سکے تو کچھ نہ کچھ رخصت بھی عنایت فرما دی۔ میرے اللہ نے پھر تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا یہ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ جل جلالہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ روزے سے بھی مقصد میرے اللہ کا اپنی مخلوق کے اندر تقوی دیکھنا ہے کہ یہ متقی بن جائے، اور قرآن کریم سے بھی مقصود میرے اللہ کا لوگوں کو متقی بنانا ہے کہ جو اس سے تعلق جو اس مہینے کے اندر روزے رکھے
रहे गا वो गुनाहों से बच कर अपनी वक़्त को दिन और रात को गुजारेगा। एक महीना जिसने इस तरह गुजार लिया अल्लाह जल्ला जलालुहु उसे मुत्तकी बना देंगे। वो मुत्तकी बन जाएगा, वो गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा, वो परहेज़गार बन जाएगा। और फिर इस नेकी के असरात उस पर पूरे साल मुरतब होंगे। वो गुनाह से वो दूर भागेगा और गुनाह जल्दी से उसके करीब ना भटक सकेगा। तो मुत्तकी बनाना मकसद है रोज़े से। और कुरान करीम से भी मेरे अल्लाह ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये कुरान करीम ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इस कुरान करीम के ज़रिए लोग मुत्तकी बनते हैं, यानी लोगों के लिए ये तक़वे का ज़रिया है, हिदायत का ज़रिया है। तो कुरान करीम को अल्लाह ने नाजिल किया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो कुरान करीम का नुज़ूल माह रमज़ान में हुआ और रमज़ान की निस्बत कुरान के नुज़ूल से बढ़ गई। फिर जिस रात में कुरान करीम नाजिल हुआ लैलतुल क़द्र की रात, उस रात को रातों की सरदार बना दिया। जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने को महीनों का सरदार बना दिया। और अल्लाह ने फरमाया मेरा है, ये महीना मेरा है और रोज़ा मेरा है, लिहाजा तुम मेरे लिए रोज़ा रखो। और जो रोज़ा रखेगा इस महीने में अल्लाह फरमा रहे अस्यामुली व अना अजज़ी बि, मैं ही इसका बदला दूंगा। कोई दूसरा देने की इतनी ताकत ही नहीं रखता तो वो इसकी नेकियों को लिख सके। इतना अजर है, इतना सवाब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे तो जो इस महीने के अंदर सहरी का एहतमाम करता है, एक तरफ तेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने जो है नबी के बारे में फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना, कि अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह के फ़रिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व मलाइका फ़रिश्ते भी जो है दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद भेजो। दूसरी तरफ मेरे अल्लाह ने अगर दुरूद भेजने का ज़िक्र फरमाया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, सहरी का एहतमाम करने वालों पर अल्लाह और अल्लाह के फ़रिश्ते दुरूद भेजते हैं, यानी रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं, रहमत बरसती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रोज़ेदार को जो माह रमज़ान के अंदर रोज़े रखता है, मेरे नबी ने फरमाया 5 इनामात अता फरमाते हैं। नंबर 1, जो इस महीने के अंदर रोज़ा रखता है अल्लाह उसके मुँह की बदबू को, अल्लाह के नज़दीक इस रोज़ेदार की मुँह की बदबू मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा अहमियत रखती है, कीमत रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मिसवाक करना छोड़ दें, आप जो है दांतों की सफाई करना छोड़ दें। ये बदबू से मुराद वो बदबू है जो भूख और प्यास की बिना पर मैदे से उठती है और मुंह के ज़रिए वो बाहर आती है। अल्लाह के नज़दीक की भूख की शिद्दत की बिना पर जो आपके मुंह से मैदे से जो है बदबू बनकर मुंह से निकल रही है, अल्लाह के नज़दीक ये बदबू मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा कीमत रखती है। मेरे वाजिब एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, दूसरा इनाम मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक समुंदर की मछलियाँ तक इसके लिए रहमत की दुआ करती हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब अल्लाह जल्ला जलालू किसी अपनी मखलूक में किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में ऐलान करते हैं कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। वो आसमान के फरिश्तों में ऐलान करते हैं अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत करता है, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और ये ऐलान होता होता 7 आसमानों से ज़मीनी आसमान पर आता है और ज़मीनी आसमान से ज़मीन के मखलूक तक पहुँचता है और ज़मीन का अंदर भी जिन्नात तक पहुँचता है, इंसानों तक पहुँचता है। यानी अर्ज़ करने का मकसद ये है कि ये ऐलान अल्लाह की जितने भी हज़ारों की सूरत में मखलूक़ात हैं, चाहे वो चरिंदे हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे मछलियाँ हैं। चूँकि मछलियों का जिक्र इसलिए फरमाया कि समुद्र की तहों तक जाती हैं, समुद्र की सतह पर भी फिरती हैं, चलती हैं और समुद्र की गहराइयों में होती हैं। तो ज़मीन की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदी तक जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मखलूक़ात हैं, चाहे मशरिक़ में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, सब की सब मखलूक़ात इस रोज़ेदार के लिए दुआए रहमत फरमाती हैं, दुआए मग़फ़िरत फरमाती हैं कि अल्लाह तो इन पर रहम फरमा, तो इनकी मग़फ़िरत फरमा, तो इनकी बख्शिश फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपनी मोहब्बत का ऐलान अपने बंदे से मुताल्लिक़ा अपनी मखलूक में फरमाते हैं तो समुद्र की मछलियाँ तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। इस रोज़ेदार के लिए
لیے تو یہ اللہ رب العزت کی محبت کا اعلان کا اثر ہوتا ہے جو ہم دنیا کا اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے پیغمبروں سے ہمارے دل میں محبت ہے، کیونکہ ان کی محبت کا اعلان اللہ رب العزت ہر زمانے میں فرشتوں میں فرماتے رہے، اور وہی اعلان کا اثر آج ہمارے دلوں میں، ایمان والوں کی دلوں میں موجود ہے کہ نبیوں کی محبت ہے، ولیوں کی محبت ہے، کتب ابدال کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، صالحین کی محبت ہے، شہداء کی محبت ہے، متقیوں سے محبت ہے، روزے داروں سے محبت ہے، یتیموں سے محبت ہے، مسکینوں سے محبت ہے، نیکوں سے محبت ہے، ولیوں سے محبت ہے۔ یہ سارا اس محبت کا اثر ہے جو اللہ نے فرشتوں میں اعلان فرمایا تھا۔ آج کوئی کسی ولی کی کوتاہی کر دے، کسی کی توہین کر دے تو فوراً ایمان والے کو غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے میرے شیخ کی برائی بیان کی ہے، اس نے میرے اللہ کے ولی کی جو ہے بے اکرامی کی ہے، بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ تو یہ محبت کا اثر ہے جس کی وجہ سے اس کے دل پر یہ ضرب لگ رہی ہے، غصے کی، تکلیف کی، درد کی، یہ ایزا جو اس کو پہنچ رہی ہے محبت کا اثر ہے۔ آج ہمارے سامنے کسی اللہ کے ولی کا ذکر آ جائے، کسی صحابی کا تذکرہ آ جائے، نبی کا تذکرہ آ جائے، ہمارا دل جو ہے، ہمارے جو ہے آنکھیں جو ہے شرم اور حیا سے جھک جاتی ہیں، ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ہے تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بعد تابعین کا تذکرہ ہو رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، بایزید بسطامی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابراہیم بن ادہم کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرا واج مالک بن دیار کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ میرا واجب احترام عزیز دوستو، یہ ان سے محبتیں، ان ولیوں سے محبتیں کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو اعلان ہوا فرشتوں میں اس محبت کا اثر ہے، اس محبت کا اثر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر روزے دار کی شب و روز میں دعا کو قبول فرماتے ہیں، شب و روز میں دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس میں اللہ روزے دار کی دعا کو قبول نہ کرتا ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ روزے دار دعا کرے اپنے رب سے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہ کرے۔ اللہ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے رمضان کے مہینے کا اندر، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس مہینے کے اندر جو روزے رکھتے ہیں روزے داروں کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں، جنت کو سجاتے ہیں، خوشبوؤں سے دھونی دی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے دار کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والا اعزاز ہے، اور جو ہے جنت کو مخاطب کر کر میرا اللہ فرماتا ہے ان قریب میرے بندے مشقتیں اٹھا کر تیری طرف آنے والے ہیں۔ جنت بھی منتظر ہے ان روزے داروں کے لیے، اور یہ روزے دار بھی منتظر ہیں جنت کے لیے۔ جنت بھی اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے اللہ جن سے تو نے مجھ سے جن کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ ان قریب میں اپنے نیک بندوں سے تجھے بھر دوں گا، اے اللہ وہ کب آئیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان قریب آئیں گے۔ دنیا کی مشقتوں سے نکل کے وہ ان قریب آئیں گے، دنیا کے دکھوں سے نکل کے وہ ان قریب آئیں گے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے اور زخموں سے نکل کے وہ ان قریب آئیں گے، جنہوں نے میرے خاطر جیا، میرے خاطر مرے، میری خاطر جو ہے اپنے نفس کی قربانیوں کو قربان کیا اور میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری۔ جو میں نے کہا اس کو اپنایا، اس پر عمل کیا، جس سے میں نے منع کیا اس سے رکے، میرے نبی کی سنتوں کو اپنایا، زندگی کو اپنایا، صحابہ کی اتباع کی، میرے نبیوں کی عظمتوں کو دلوں میں پرویا اور محبت کو بسایا، تو اس کی وجہ سے اللہ آج تیرے لیے جنت کو سجا رہا ہے، اللہ تیرے لیے جو ہے جہنم کے دروازوں کو بند فرما رہا ہے، اللہ تیرے لیے جو ہے جنت کی بشارتیں سنا رہا ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز دوستو، یہ ماہ رمضان یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیوں کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا، تو قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت بڑھ گئی، جس رات میں نازل کیا اس رات کی عظمت بڑھ گئی، 1000 مہینوں سے افضل اس رات کو اس کی فضیلت کو بڑھا دیا، اور پھر 11 مہینوں سے اس کی عظمت کو بڑھا دیا، جس سے معلوم ہوا قرآن کا تعلق رمضان کے مہینے سے بہت گہرا ہے، اور گہرا کا تعلق رمضان کا تعلق قرآن کریم سے بہت گہرا ہے، یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ لہٰذا قرآن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دولت عطا فرمائی ہے، آپ اس مہینے کے اندر اس مہینے کی قدر کر لیں، اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کو معاف کرا لے، اس مہینے کے اندر اپنے رب کو منا لے، اس مہینے کے اندر توبہ کر لے، استغفار کر لے، دعاؤں کا اہتمام کر لے کہ میں نے جیسا کہ بتلایا اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر، تو اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کی جائے، اس مہینے کے اندر کثرت سے دعا کی جائے، کیونکہ دعا بھی الدعاء ہی العبادہ،
इबादत ही है। और मेरे नबी ने फरमाया अब दुआ मुख्फुल इबादा, दुआ इबादत का निचोड़ है, ये मगज़ है, लिहाजा तुम इस महीने के अंदर दुआ करो। अल्लाह खुद फरमा रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं इसके करीब होता हूँ। उजिब दाअवतद दाई इज़ा दआनी फलियस्तजीबू ली, जब भी मेरा बंदा मुझसे मांगता है मैं इसकी दुआ को कबूल करता हूँ। या अल्लाह फरमा रहा है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इसकी शहरक से भी ज़्यादा इसके करीब होता हूँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह फरमा रहा है तुम मुझे पुकारो तो सही, मुझे बुलाओ तो सही, मुझसे मांगो तो सही। हाँ, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अकड़ जाता है, नाक चढ़ा लेता है। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम में फरमाते हैं जो अल्लाह से मांगने का पसंद नहीं करते, लोगों के सामने तो हाथ फैलाते हैं, रब के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अकड़ जाते हैं। खुद अपनी दौलत के नशे में अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपनी चौधराहट के नशे में अपने आप को बड़ा समझते हैं। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं है। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो अल्लाह की मोहब्बत में अपनी नाक, अपनी पेशानी ज़मीन पर रगड़ते हैं और कहते हैं या रब मुझे माफ़ फरमा, या रब मेरी मग़फ़िरत फरमा, या रब मेरे रोज़ों को कबूल फरमा। मैं इस काबिल तो ना था कि मैं तेरे लिए भूखा प्यासा रहूं, लेकिन तेरी तौफीक से मैंने रोज़ा रखा है तो अब तू कबूल भी फरमा ले। मैं इस काबिल तो ना था, तेरा पाकीज़ा कलाम है, मेरी नज़रें इतनी गंदी हैं कि इसको देखने से आजिज़ है, इस काबिल नहीं है कि तेरे पाकीज़ा कलाम को देख सके, लेकिन तेरी तौफीक से मैंने इसको देखा है, इसको पढ़ा है, इसको सुना है। या अल्लाह लिहाजा मुझे तू माफ़ फरमा दे। अल्लाह के लिए आज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह उतनी रिफ़अतें अता फरमाते हैं, बुलंदी अता फरमाते हैं। लिहाजा जब तक इंसान ये रोज़ेदार जब तक रोज़े को फाड़ ना दे अल्लाह के हाँ उसका अजर लिखा जाता है। रोज़ा को फाड़ना क्या मतलब है इसका? रोज़े को फाड़ना ये है कि आपने गलत नज़रें उठाई, बदनज़री की, बेहयाई की, और जो है आपकी जिस तरह रोज़ भूखा प्यासा रहना ये एक रोज़ा है, इसी तरह जिस्म के हर जुज़ का, हर आज़ा का आपका रोज़ा है। आँख का भी रोज़ा है, कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, हाथों का भी रोज़ा है, कदमों को भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है। ज़ुबान से झूठ बोल कर रोज़े को ना तोड़ो, आँखों से गलत देख कर रोज़े को ना तोड़ो, कानों से गलत सुनकर रोज़े को ना तोड़ो, आँखों से गलत देख कर रोज़े को ना तोड़ो, हाथों से चोरी कर कर रोज़े को ना तोड़ो, कदमों से गुनाह की तरफ चल कर जाकर तुम रोज़े को ना तोड़ो। अपने आज़ा की हिफाजत करो और यही तकवा है। तकवे से मकसद यही है कि तुम ज़रा बच कर ज़िंदगी गुजारो, कहीं तुम्हारा रब का हुक्म तुमसे टूट ना जाए, कहीं रब तुमसे रूठ ना जाए। लिहाजा अपने रब से फरियाद करो, अपने रब को पुकारो। इस महीने के अंदर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाज़ों को खोला है। उस रब के लिए तुम आज़ी इख्तियार करो, इंकिसारी इख्तियार करो, उसे पुकारो। आज तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए अपने दरवाज़ों को खोला है और ये दरवाजे ऐसे खुले हैं पूरे महीने के अंदर बंद नहीं होंगे। इस महीने के अंदर हर रात में, हर दिन में जहन्नुम से जहन्नुम को आज़ादी दी जा रही है और जन्नत में दाखिले के फैसले किए जा रहे हैं। लिहाजा अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत कराओ, अल्लाह के लिए एहसाल सवाब करो, उनके लिए रोज़े रख कर एहसाल सवाब करो, उनके लिए कुरान करीम की तिलावत कर कर हदिया करो, उनके लिए सदक़ात खैरात कर कर हदिया करो, उनके लिए रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार करा कर हदिया करो, उनके लिए ग़ुलामों पर आसानी पैदा कर कर, अपने मज़दूरों पर, मातहतों पर आसानी पैदा कर कर उनके लिए एहसाल सवाब हदिया करो। ये रब ने तुम्हारे लिए सहूलियात दी हैं, तुम्हारे ऊपर जो एहसानात हैं तुम्हारे बड़ों के, तुम्हारे अपनों के, तुम्हारे प्यारों के, तुम्हारे वालिदैन के, तुम्हारे भाइयों के, तुम्हारे अज़्ज़ व अक़रीबा के, जो आज दुनिया में नहीं है, तुमसे जुदा हो चुके हैं, तुमसे दूर जा चुके हैं और उनकी वापसी नहीं है और तुम ही ने उनके पास जाना है। उनके एहसानात हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए वो घर बार छोड़ कर गए, गाड़ियाँ छोड़ कर गए, प्रॉपर्टियाँ छोड़ कर गए, जायदादें छोड़ कर गए, बिजनेस छोड़ कर गए। आज तुम उनके लिए हाथ उठाकर एहसाल सवाब नहीं कर सकते, आज तुम उनके लिए हाथ उठाकर उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, आज तुम उनके लिए कुरान करीम रात में मुकम्मल कर कर, दिन में मुकम्मल कर कर, तहज्जुद में पढ़कर, नवाफिल में पढ़कर, नमाजों में पढ़कर तुम उनके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते। ये किस कदर तुम नाशुक्र हो, तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते। तुम लोगों के क्या तुम एहसानमंद होगे, लोगों के क्या तुम शुक्रगुजार बनोगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल करे फिर उस रब की जो है शुक्र ना बजा लाए, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेमतों का जो है ज़मीन पर अल्लाह की ज़मीन को गंदा करे और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा भी ना करे, इस्तग़फ़ार भी ना करे, माफ़ी भी ना मांगे, यानी अकड़ जाए। तो फिर तू इंतज़ार कर उस वक़्त का जो तेरे रब ने दूसरी कौमों के साथ किया, तेरे रब ने कौम नूह के साथ किया, गरक कर दिया ना पाँव से लेकर सर तक उसे पानी के अंदर, और चीखता रहा, चिल्लाता रहा और औरत में वो अकड़ हुई कि बच्चों को अपने सर पर उठा लिया, खुद भी डूबी
बच्चे को भी डुबाया लेकिन उसने तौबा ना की। ये है तेरी अकड़। अब तू देख अल्लाह के अजाब को, अल्लाह की गिरफ्त को, अल्लाह की पकड़ को। तो वही है ना, तूने देखा नहीं कौम आद के साथ क्या हुआ, कौम हूद के साथ क्या हुआ, कौम समूद के साथ क्या हुआ, कौम साले के साथ क्या हुआ। अल्लाह ने बहुत नेमतें दी थी बनी इसराइल को भी। आसमान से उनके लिए मन और सलवा उतर रहा है, उनके लिए उनके लिबास उनके जो है उम्रों के साथ बढ़ रहे हैं। उन पर आसमान से बादल जो है साया कर रहा है कि इनको गर्मी ना लगे। पकड़ भी है, गिरफ्त भी है जहाद के इनकार करने पर, फिर भी रब की रहमत है कि आसमान से बादल उन पर साया कर रहा है। चलते हैं तो बादल चलता है, रुकते हैं तो बादल रुकता है। मेरे वाजिब एहतराम अजीज दोस्तों, इस कदर अपनी आंखों से अल्लाह की नेमतों को देखकर भी वो लोग नाफरमानियां करते रहे। तो हम जो है उन लोगों से इबरत हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आज भी मन सलवा उतार सकता है, आज भी बादल हमारे चलने से चला सकता है। लेकिन मेरे वाजिब एहतराम अजीज दोस्तों, जब कोई शख्स जिद पर अड़ जाता है, अकड़ पर आ जाता है और उसके हवा से खमसा काम करना छोड़ दें, फिर उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती, वो बेसमझ बन जाता है, नादान हो जाता है। लेकिन इस नादानी को बेदार करने के लिए, इसे समझदार बनाने के लिए मेरे रब ने तुम्हारे दरमियान कुरान छोड़ा है, मेरे रब ने तुम्हारे दरमियान नबी की ज़िंदगी को छोड़ा है। लिहाजा नबी की ज़िंदगी को अपने साथ मजबूती से पकड़ लो और अल्लाह के नबी के कुरान के साथ ताल्लुक़ मजबूत कर लो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मुत्तकी बना देगा, परहेज़गार बना देगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।